Okay students, so today is our 7th class for the chapter Fundamental Unit of Life. In the chapter Fundamental Unit of Life, we have completed with the introduction, the history, the classification of organisms, and then yesterday we started the basic parts of the cell, basically जो मिलके सेल को बनाते हैं उनके बारे में स्टार्ट किया था. फिर हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन की नेचर के बारे में पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ा था, उसके रोल के बारे में पढ़ा था. तो रोल के अंदर हमने किया था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस में हमने देखे थे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. The first one can be gaseous, second one is liquid, and third is the solid. Now gaseous जो थे they were taking place with the help of the process known as diffusion. Diffusion के बारे में हमने कल डिटेल में पढ़ लिया था. Then these gaseous solid, basically solid particles जब भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं then they take place due to facilitated diffusion या active transport की हेल्प से हो जाते हैं. ठीक है, अब हम शुरू करने जा रहे हैं liquid components का ट्रांसफर and that is with the help of osmosis. मतलब basically osmosis जो है that is responsible for the transportation of liquid substances, basically the solvent or we can say water. इसके बारे में इसमें हम वाटर की ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन लिक्विड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन ऑस्मोसिस. तो सबसे पहले लेट अस रीड अबाउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस. द मूवमेंट of solvent लिख सकते हो. solvent ज्यादातर जो होते हैं that is water. Majorly the solvent particles that we consider that is water only. Movement of solvent or water particles from its higher concentration to its lower concentration through a semi-permeable membrane is known as osmosis. So what we have came up with is that the movement of water particles from its higher concentration to its lower concentration through a semi-permeable membrane. The first important word in the definition of osmosis is solvent particles. Solvent particles नहीं लिखा और osmosis की definition लिख दी. Osmosis की सारी definition आपकी गलत हो जाएगी क्योंकि main जो word है osmosis में that is solvent particles. Okay? From its word is very important. Basically ये वाला जो its word है that is very important. वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे. Through a semi-permeable membrane. Solvent from its higher concentration to its lower concentration. And the next very important word is the word semi
permeable membrane. Suppose I have a beaker and I have separated this beaker with the help of a parchment, an animal, or basically a membrane that is equal to the composition of the plasma membrane. This is the animal membrane, or we can say cell membrane. And this membrane is semi-permeable membrane. That is, it let only the solvent particles to pass through itself and stops or blocks the passage of the solute particles. Okay, do you get it? This is the animal membrane or the semi-permeable membrane which blocks the movement of solute particles and only allows the movement of solvent particles. Now this is a beaker. This is the same beaker that I have, and let me draw the simple water molecules with the help of the blue marker. We have the water. Suppose the volume of this water is 10 milliliter in the A side and 10 milliliter in the B side. Okay, A side में भी 10 milliliter है and B side में भी 10 milliliter है. Now let me indicate the solute particles with the help of this red marker. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 solute particles. And here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. The solute particles are 12 gram per 10 milliliter. You can just suppose this thing as grams. You can suppose this thing as milligrams. I'm just telling you the thing that we have just took this. Here it is 6 gram per 10 milliliter. Now अब बात आ गई है concentration and dilution की, ठीक है? चाय तीखी बनाना. कभी सुना आपके पापा ने आपके मदर से बोला हो कि चाय तीखी बनाना, अच्छी वाली चाय बनाना. इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा टी लीव्स वाली चाय पत्ती ज़्यादा डालते हैं जब उसको हम ज़्यादा बॉईल करते हैं तो वो जो टी होती है ना दैट इज स्ट्रॉन्ग. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी लीव्स or we can say the other substances are more in the same amount of water. The thing there is that is dilution and concentration. बस इतनी चीज आप समझ लो, दोनों में वॉल्यूम सेम है. The more number of water particles, वाटर की जगह लिख लो सॉल्वेंट. द लेस नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स. यहां पे इसको चेंज करने वाली हूं अभी. द मोर नंबर ऑफ वाटर की जगह लेस नंबर ऑफ solute particles and more number of solute particles. ये दोनों है जो these are definition of dilution and concentration. Suppose करो मेरे पास कोल्ड ड्रिंक है, हाफ ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक, हाफ ग्लास ऑफ कोक है मेरे पास. तो उसमें मैं क्या डाल रही हूं, उसमें मैंने हाफ ग्लास ऑफ वाटर डाल दिया. तो मैंने क्या कर दिया, कोल्ड ड्रिंक को क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया. अब वो कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट नहीं रहेगा, पानी और कोल्ड ड्रिंक का इक्वल टेस्ट आएगा. दैट मीन्स आई हैव डाइल्यूटेड द सॉल्यूशन. मतलब पानी डाल के मैंने क्या कर दिया, इसको डाइल्यूट कर दिया. सेम इज द थिंग ऑफ दिस diluted and concentrated solutions. अब यहां से आप बताओ मुझे
यहाँ पे हमारे पास 6 ग्राम है, 6 ग्राम पर 10 मिलीलीटर। द फर्स्ट थिंग इज दिस कि वॉल्यूम है जो यहाँ पे भी 10 मिलीलीटर है एंड यहाँ पे भी 10 मिलीलीटर है। ओके, द वॉल्यूम इज सेम ऑन द बोथ साइड्स, बट वेयर इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज द सॉल्यूट पार्टिकल्स। कौन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है? जिसमें ज्यादा सॉल्यूट है। ज्यादा सॉल्यूट किसमें है? 12 ग्राम वाले में ज्यादा सॉल्यूट है। Thus this solution is more concentrated and this solution is less concentrated. याद रख लो, अपने दिमाग में बिठा लो that osmosis always takes place from more concentrated solution, less concentrated solution towards more concentrated solution. क्योंकि यहाँ पे जो concentration है ना, वो किसकी कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं? हम सॉल्यूट पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लेस सॉल्यूट में से मोर सॉल्यूट की तरफ जाएगा। ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा फ्रॉम द लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, मींस द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस। यहाँ पे मैं 2 पॉइंट्स लिख ली हूँ एंड दीज 2 पॉइंट्स आर रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज को आपने हमेशा के लिए दिमाग में बिठा के रखना है। ऑस्मोसिस ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम dilute to concentrated solution. That means more water to less water solution. हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में दैट पानी है, पानी में मैंने 1 चम्मच शुगर घोल दी, वो घुल कैसे गई? मुझे दिख क्यों नहीं रही है? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर स्पेस है एंड वो जो शुगर पार्टिकल्स हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर वाली स्पेस के अंदर पहुंच गए एंड वहां पे जाके वो पूरी अच्छे से मिक्सअप हो गई। ठीक है, सो जो एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है वहां पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर बहुत कम होता है एंड मोर जो बिजी वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर ज्यादा होता है। ठीक है, तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स ने मूव करना है, जितने यहाँ पे जितने फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स है ना वो मूव करेंगे। जो बंधे हुए हैं विद द शुगर और सॉल्ट वो नहीं मूव कर पाएंगे, वो मूव कर ही नहीं पाएंगे। जो बंधे हुए हैं वो कैसे मूव कर जाएंगे? वो मूव ही नहीं कर पाएंगे। जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स है वो मूव करेंगे फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, मतलब हमेशा जो ऑस्मोसिस होती है दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि ऑस्मोसिस हमेशा पानी की होती है। हम डिफ्यूजन की बात करते हैं दैट इज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोसिस में हम बात ही पानी की कर रही हैं। पानी की कॉन्सेंट्रेशन किस सॉल्यूशन में ज्यादा होगी? डाइल्यूट सॉल्यूशन में ज्यादा होगी। तो जो वाटर है वो मूव करेगा फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब समझ आ गया? फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन इसकी कहाँ पे ज्यादा होगी? डाइल्यूट सॉल्यूशन में। फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन मींस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। हमेशा जो ऑस्मोसिस होगी वो होगी डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। अब हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे। Now, just imagine one thing that there is a chemistry experiment going on. I have 3 students. मेरे पास
3 स्टूडेंट्स हैं, आई हैव 3 स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं और यू कैन से 3 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो उन 3 स्टूडेंट्स को मैंने बोला आपने जो सॉल्यूशन बनाना है 200 ग्राम पर 200 मिलीलीटर, 200 ग्राम ऑफ सॉल्ट एंड 100 ग्राम ऑफ वाटर। मैं ये बात कर रही हूँ, ठीक है। मैंने स्टूडेंट्स को बोला कि आपने इस कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन बना के लाना है एंड मुझे दिखाना है। अंडरस्टूड? ये कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 200 ग्राम पर 200 मिलीलीटर, 200 ग्राम पर 200 मिलीलीटर। अब मेरे पास ए स्टूडेंट आया, ए स्टूडेंट मेरे पास आया, बी भी आया और सी भी आया। ए स्टूडेंट ने क्या किया, मैंने बोला तो था 200 ग्राम 200 मिलीलीटर में, इसने क्या किया, इस सभी स्टूडेंट्स को मैंने खुद 200 मिलीलीटर पानी बीकर में डाल के दिया, इसीलिए सबका वाटर जो मेजरमेंट था वो सेम था, क्योंकि मैंने बीकर में सबको पानी डाल के दिया। ए वाले बच्चे ने क्या किया, उसने 140 ग्राम सॉल्ट घोला 200 मिलीलीटर के अंदर। बी वाला बच्चा बहुत अच्छा था, उसने मेरी बात को अच्छे से सुना, ध्यान से मेजरमेंट्स किए एंड इसने 200 ग्राम पर 200 मिलीलीटर ही बनाया। सी वाला बच्चा क्या था, इसने क्या मिस्टेक कर दी, इसने 200 ग्राम की जगह 240 पर 200 मिलीलीटर, 200 ग्राम पर 240 ग्राम पर 200 मिलीलीटर डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या कर दिया, एक सॉल्यूशन बन गया। ए वाले बच्चे ने सॉल्यूशन क्या बना दिया, डाइल्यूट। बी वाले बच्चे ने क्या किया, बिल्कुल सही से बनाया, राइट। इसने क्या किया, इसने ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। तो ये डाइल्यूट वाले सॉल्यूशन का नाम हो जाएगा हाइपो। हाइपो का मतलब होता है कम, कम सॉल्यूट वाला जो सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये वाला सॉल्यूशन का क्या बन गया मेरा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये वाला सॉल्यूशन बिल्कुल सही बना तो इसका नाम क्या पड़ गया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का क्या नाम पड़ गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है। हाइपर का मतलब हमेशा ज्यादा होता है, हाइपो का मतलब हमेशा कम होता है। सो दिस इज द नेम ऑफ सॉल्यूशंस, दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस जो हमें मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। नाउ ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आपको सब समझ आ गई थी। अब हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये तो मैंने बनवाया था सॉल्यूशन, ठीक है, बट रियल में इसकी डेफिनेशन क्या होती है ये देख लेते हैं। हमेशा सेल बायोलॉजी में, सेल बायो में हमेशा सेल को, जो भी टाइप का सेल मेरे पास है ना उसको मैं मानूंगी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सेल की क्या टोनिसिटी होती है, मतलब ये मेरा सेल है, सबको सपोज करो दीज आर द चीक सेल्स। चीक सेल्स कौन से होते हैं, चीक सेल्स आर द सेल्स जो हम चीक्स के अंदर से निकालते हैं, स्क्रेप आउट करके उसको फिर माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, दैट इज द प्योर स्टडी ऑफ अ एनिमल सेल। तो ये सपोज करो मेरे पास चीक सेल्स हैं, चीक सेल्स की कॉन्सेंट्रेशन मान लो x मोल,
कॉन्सेंट्रेशन को हम मोल्स में लेते हैं, x मोल मान लो, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, the solution which has a lesser concentration in comparison to our cell of reference, या फिर जिस सेल पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, R की जगह आप भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब यही है कि ये जो सेल है, सेल की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज लेस, बाहर वाले सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज लेस। अब आ गया हमारा नेक्स्ट टर्म दैट इज आइसोटोनिक। The type of solution which has same concentration as that of our cell of reference, or we can write a cell, ठीक है। Now next, at last we have hypertonic solution. The type of solution which has more concentration than that of our cell. That was all about the types of solution जो osmosis में आएंगे। तो types of solution हमने क्यों पढ़ा यहाँ पे, so that we can read now type of osmosis. अब आपको ये हमेशा याद रखना है एंड ये आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है इन फ्यूचर, इन प्रैक्टिकल बायोलॉजी, इन अंडरस्टैंडिंग एनी कंसेप्ट ऑफ फिजियोलॉजी इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। ऑस्मोसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ठीक है। ये तो हो गए हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर ही ऑस्मोसिस होती है, इसलिए हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किया। नाउ अब हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। अब इसको याद रखना, मैं सामने ही लिखूंगी। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के सामने हमारा फर्स्ट टाइप में लिखने जा रही हूं, दैट इज एक्सो ऑस्मोसिस। नेक्स्ट टाइप इज नो ऑस्मोसिस। नो ऑस्मोसिस बेसिकली कोई टाइप नहीं है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोई ऑस्मोसिस नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे लिखा है नो ऑस्मोसिस। एंड इन द थर्ड सॉल्यूशन देयर इज एंडो ऑस्मोसिस। अब आपको ये समझ आ ही गया होगा, एक्सो का मतलब होता है बाहर
ऑस्मोसिस का होता है मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस। एक्सो का मतलब बाहर, लिख लो यहाँ पे, आउट मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स। ये प्रॉपर डेफिनेशन आपको लिखवाऊंगी, जस्ट आपको ये रिकैप्चुलेशन दिया है ताकि नाम आते ही ना आपको समझ आ जाए। एक्सोऑस्मोसिस मतलब बाहर की तरफ जा रहा है पानी, पानी बाहर की तरफ जा रहा है मतलब एक्सोऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हो ही नहीं सकती क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ही इक्वल है, नो ऑस्मोसिस। नाउ एंडोऑस्मोसिस, एंडो का मतलब इन, इनसाइड, ऑस्मोसिस का मतलब है मूवमेंट ऑफ वाटर। ओके स्टूडेंट्स, सो देखो हमने क्या बोला, ऑस्मोसिस हमेशा होगी डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है जो, देखो इसमें क्या है, विच हैज लेसर कॉन्सेंट्रेशन। लेसर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये क्या हो गया, डाइल्यूट। इन कंपैरिजन टू अवर सेल, यहाँ पे जो सेल पड़ा है हमारा चीक सेल जो हमने लिया था, इन कंपैरिजन टू द सेल ये वाला सॉल्यूशन है डाइल्यूट, यहाँ पे है सेल मेम्ब्रेन, तो क्या हो जाएगी, पानी है जो वाटर मॉलिक्यूल्स वो अंदर वाली साइड मूव करेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सॉरी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पानी अंदर आएगा, देयर इज, ओके, तो आई हैव टू राइट इट, या एंडोऑस्मोसिस। देखो ये हमारा क्या है, दिस इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अंदर आएंगे। थस हियर द ऑस्मोसिस दैट विल टेक प्लेस विल बी एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस क्यों होगी, क्योंकि बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स का अमाउंट क्या है, ज्यादा है, एंड अंदर सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स का अमाउंट कम है। ये वाला सॉल्यूशन क्या हो गया, ये कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, और वो वाला सॉल्यूशन डाइल्यूट। डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, thus it is endoosmosis. Endoosmosis, the movement of water particles inside the cell. ऑस्मोसिस क्या है, अंदर हो जाएगी सेल के, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, अंदर मूव कर जाएंगे। ओके, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, अब देखो ये हमारा सेल पड़ा है, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम अमाउंट है एंड यहाँ पे भी सेम अमाउंट है कॉन्सेंट्रेशन का, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम। सो मूवमेंट तो होगी, बट जितने वाटर मॉलिक्यूल्स मूव अंदर करेंगे उतने ही क्या कर जाएंगे, बाहर मूव कर जाएंगे। सो नो स्वेलिंग और श्रिंकेज, बेसिकली नो ऑस्मोसिस, किसी भी टाइप की ऑस्मोसिस नहीं होगी, नो स्वेलिंग और श्रिंकेज। सो थर्ड टाइप हमारी क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मैंने आपको एक बात बोली थी इक्विलिब्रियम की, कि कोई भी चीज है डिफ्यूजन तब तक होगी जब तक इक्विलिब्रियम नहीं अटेन हो जाएगा, ऑस्मोसिस भी तब तक होगी जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाएगा। अब देखो हमारा बेचारा सेल है, बेचारे सेल के पास तो कितना ही पानी है। सपोज करो मेरे पास एक अमीबा है, एक अमीबा को मैंने क्या किया, ओशन के अंदर फेंक दिया। अमीबा तो रहता तो रिवर में है या पॉन्ड में रहता है, बेसिकली फ्रेश वाटर में रहता है। फ्रेश वाटर में क्या होता है, जो सॉल्ट का अमाउंट होता है वो कम होता है, एंड फ्रेश वाटर में सॉल्ट का अमाउंट कम होता है, एंड जो सीज एंड ओशंस है मेरीन वाटर में सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा होता है। मतलब कि क्या हो गया, ये वाला जो सी वाला वाटर है ये हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो एक्सोऑस्मोसिस होनी शुरू कर जाएगी, सारा पानी ना इसका बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा, क्योंकि अमीबा सेल को क्या लगेगा कि जब तक इक्विलिब्रियम नहीं अटेन हो जाता ना, मैंने उसको अपना पानी देते ही रहना है। और इससे क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली हमारा जो अमीबा सेल है वो बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा।
बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा, अल्टीमेटली इट विल डाई। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक्सोऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स आउटसाइड द सेल, मूवमेंट of water particles outside the cell. This is known as exoosmosis. Okay, so that was all about osmosis, types of osmosis and types of solution in the topic transportation of substances through cell membrane. बस एक चीज आपको याद रखनी है कि जो एंडोऑस्मोसिस होती है that always result in swelling of cell, ठीक है, एंड एक्सोऑस्मोसिस है वो हमेशा श्रिंकेज ऑफ सेल में रिजल्ट करती है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि जब आपके हाथ पैर, सर्दियों में जब आपके हाथ पैर स्वेल कर जाते हैं तो लोग बोलते हैं, बेसिकली हमारे जो एल्डर्स हैं वो हमें सजेस्ट करते हैं कि नमक वाले पानी में, गर्म पानी में अपना क्या कर लो, हाथ रख लो एंड यू विल फील फाइन। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस, जो स्वेलिंग हुई है, स्वेलिंग में हमारे अंदर ज़्यादा साइटोप्लाज्म चला गया, ज़्यादा वाटर चला गया। जब हम उसको सॉल्ट वाले कॉन्सेंट्रेशन में रखेंगे तो दैट विल बी अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगी, एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगी, एंड एक्सोऑस्मोसिस होने की वजह से हमारा जो स्वेलिंग ऑफ द हैंड्स और लिम्स और किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी को नुकसान हुआ है वो ठीक हो जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप यू गॉट इट। फॉर द नोट्स visit to the link in the description box. Thank you.